students, myself Vijay Pratap Singh. So in front of you today I will explain topic classification of data. It is the statistical analysis from statics, chapter 2, collection of data. Once again, this is the subject statics and main heading, this main topic is the collection of data, and here we have to read how we can able to collect our data. So collection of data we have to read here, and before that I will explain what is the meaning of data. इसके पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा हम डाटा किसे कहते हैं, डाटा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको ये पता होना चाहिए इन आवर डेली लाइफ which work we are going to do, which subject we are going to read, otherwise what we are going to complete, it all things are coming inside in the data. Suppose for example you are reading math, physics, chemistry, biology, Hindi, English, whatever, all things are coming inside in the representation of data. Each and everything in our daily life, a lot of works we are facing, these all things are coming inside this are called data. ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में आती हैं, इसे डाटा ही कहा जाता है और ये डाटा का रिप्रेजेंटेशन ही होता है। ठीक है, डाटा हमारे लिए दो माध्यमों से प्राप्त होता है। फर्स्ट वन प्राइमरी डाटा, सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा. With the help of two types we can able to collect our data. First one is primary data and second one is secondary data. हम दो तरह से अपने डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी डाटा, दूसरा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आपको सब टॉपिक्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम प्राइमरी डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन्हें जानने से पहले आप पर्सनल या इनके बारे में हम जान लें कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, पहले ये जानते हैं। तो मीनिंग अगर आपको बताया जाए, द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इन द मेथड बाय विच डाटा इज पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट वन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. Once again you have to come on the point. ठीक है, once again listen, the direct person and one person investigation in the method by which we can able to read these types of data and personal collection, we are going to know with the help of investigation, that one is called primary data. In other word we can say investigator is in direct contact with the people from when the information is sought out. We can say investigating students of the school personally to know their pocket experience, we can able to know with the help of these things, and these are the very important part of our primary data. Primary data has some systemicity. Area is a quantity of limited. Primary data area is a very limited. Between that, it is a working inside in our area. Another thing we can say maximum degree of accuracy. Primary data is a very accurate. बहुत सही होता है, सुरक्षित होता है, 100% सही होता है. That's why we need primary data. Direct contact with the information is necessary. In primary data, direct contact is a very necessary, very important part for the primary data. Okay. Now we have to know secrecy should be also there in the information of significance of primary data. Data are required to be original. Each and every data what we are going to read inside, it should be original. That one is called primary data. So once again we have to come on the topic and know what is the merit of primary data. To know with that we need accuracy.
प्राइमरी डाटा का सबसे अच्छा मेरिट है, हमें एक्यूरेंसी प्राप्त होती है, ओरिजिनलिटी प्राप्त होती है और रिलेबिलिटी प्राप्त होती है कि ये हमारे डेली लाइफ में रिलेबल है या हमसे मिला जुला है, हमसे संबंधित है। ये सारी चीज़ें प्राइमरी डाटा के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। फिर से एक्यूरेसी प्राप्त होती है, 100% सही है, ओरिजिनलिटी प्राप्त होती है, ओरिजिनल है, और रिलेबिलिटी हमसे संबंधित। ये तीनों चीजें हम प्राइमरी डाटा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू टॉपिक्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू इन द प्राइमरी डाटा। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वी विल गो एंड डू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इन द प्राइमरी डाटा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम डायरेक्ट पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड वन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी से भी आपके बारे में पूछ सकते हैं, इसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ओके, यहाँ दो चीजें बताई गई। डायरेक्ट पर्सनल, मैं कहीं जाऊं किसी के बारे में प्रत्यक्ष पूछूं उनसे, उसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। अनदर, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्यों कहा जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से मैं किसी और से आपके बारे में जानकारी लूँ ओरली, कि मैंने कहा वो मोहन है, मोहन इस गांव का कैसा बच्चा है, वो किस स्कूल में पढ़ता है, उसके फादर क्या है, पिता क्या है, माता क्या है। A lot of data we can able to calculate. That one is the indirect oral investigation. Okay. Third one is the informal from local sources. हम अन्य लोकल साधन संसाधनों के माध्यम से आपकी जानकारी लें या हम आपकी जानकारी को प्राप्त करें, इसे कलेक्शन ऑफ डाटा कहा जाता है और प्राइमरी सोर्स कहा जाता है, जिसके माध्यम में लोकल सोर्सेज आते हैं। आपके नज़दीक आसपास पड़ोस के लोगों से हम आपकी जानकारी लें। सपोज बाजार में मेरे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, मैं बाजार के लोगों से ही पूछूंगा। ये सारे क्या है? लोकल सोर्सेज। नेक्स्ट वन इज गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। आप कहीं क्वेश्चन पूछो, प्रश्न पूछो, उसके अनुसार आपको जो जवाब मिलेगा वो भी आपके प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आता है। वी हैव टू आस्क क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस एंड वी कैन एबल टू नो दीज ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ फिलिंग क्वेश्चनियर्स। आप एक पेपर ले लो, सारे क्वेश्चंस को लिख लो और वहाँ आंसर टिक करवाओ कि आप मेरी सुविधाओं से संतुष्ट हैं या नहीं, हाँ या ना। तो आएगा आदमी टिक करके चला जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि आपकी सुविधाओं से लोग खुश हैं या नहीं। इसे कैलकुलेट करने के दो माध्यम हमारे पास हैं। पहला है मेल। विद द हेल्प ऑफ मेल वी कैन एबल टू कैलकुलेट प्राइमरी डाटा। एंड नेक्स्ट वन इन्यूमरेटर। ओके, इन्यूमरेटर। With the help of that also we can able to know about your data, about my company's product. Each and every data we can able to calculate with the help of this. Another one is given in front of you, telephonic information, otherwise interview. हम फोन के माध्यम से कोई भी मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं। ये टेलीफोनिक इंटरव्यूज के अंतर्गत आता है। हम किसी भी प्रश्न और जवाब को मांगते हैं, पूछते हैं तो टेलीफोन कर लें, उसके अनुसार क्वेश्चंस को जानें। ये टेलीफोनिक इंटरव्यूज के अंतर्गत आता है कि हमने कोई कुछ पूछना है और डायरेक्ट हम फोन कर लें और पता कर लें। दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट वन, आफ्टर प्राइमरी डाटा वी आर गेटिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज आल्सो टू टाइप्स। We can able to calculate secondary data with the help of two processes or two sources. First source is given in front of you, published sources, and second one is unpublished sources. पहला माध्यम है published sources, दूसरा unpublished sources। इसके माध्यम से हम अपने कलेक्शन ऑफ डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया गया इसके अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत आपको सब टॉपिक बताए जाएंगे। तो हियर इज नो स्पेस ऑन द बोर्ड, आई एम एक्सप्लेनिंग ओरल, यू हैव टू राइट
फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अनुसार भी सेकेंडरी डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं या सेकेंडरी डाटा को हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ इंटरनल बॉडीज। विद द पब्लिकेशन ऑफ इंटरनल बॉडीज आल्सो वी कैन एबल टू कैलकुलेट पब्लिश्ड सोर्सेज एंड वी कैन कलेक्ट आवर secondary data. Third one is a semi-official publication. With the help of semi-official publication, we can able to get our secondary data. Fourth one is given in front of you, reports of committees and commission. Some committees and commissions you are maintaining. With the help of that, you can able to get secondary data. And last one is given in front of you, private publication. With the help of private publication, we can able to calculate our secondary data. After that, in the private publication, there is a subtopics are coming inside. You have to listen. First one is a general and newspaper. साधारणतः हम समाचार पत्र से कोई चीजें पा सकते हैं और सामान्यतः कहीं से भी। सेकेंड वन rewards, third one trade, and fourth annual report, and fifth activities market and report। इसके माध्यम से हम सेकेंडरी डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अभी जो टॉपिक बताया गया है ये आपके डेली लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके माध्यम से आप कलेक्शन ऑफ डाटा को इकट्ठा करते हो। कलेक्शन ऑफ डाटा वी कैन एबल टू कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ टू सोर्सेज, primary data and secondary data. In primary data you will get these types of subtopics, and secondary data you will get published sources, second unpublished sources. Unpublished sources, there is no any subtopic, but here we are getting subtopic. I had explained you 5 topics and 5 subtopics are coming inside. You have to make a note and write it. Dear students, please subscribe my channel and share this video to your friends. If you want to give any suggestion, if you want to ask any question, you have to comment on my video. Okay? Thank you all for attending my lecture. Wait for next video. Thank you all.